Good morning, students. Today we will see the fifth chapter, that is Introduction to Euclid's Geometry. The word geometry comes from the Greek word geo. And what is the meaning of geo? It is earth. And metrian means what? To measure. So geometry means geo and metry. Geo means earth and metry means measure. Is it okay, bete? Now in this chapter, we'll be studying axioms and postulates. Now what are these axioms and what are these postulates? Bete, axioms are the assumptions which are universal truths and they are related to entire mathematics. See, mathematics includes arithmetic, arithmetics, geometry, algebra, all these things, isn't it? All these things come under mathematics branch. Now, axioms are those assumptions which are related to entire mathematics. Whereas, what are postulates? Postulates are those assumptions which are only specific to geometry. Means these are assumptions which are only related to geometry. Not arithmetic, not algebra. It is only specific to geometry. So this is the main difference between the word axiom and postulate. I hope it is understood, bete. Now let us see what are the axioms and postulates different cases, and let us try to understand. Euclid's axioms. We have 7 axioms, bete, and all these 7 axioms are very important. We are using these things also, but we are not aware about them. So let us understand each one of them. First axiom says that things which are equal to the same thing are equal to one another. I'll repeat once again, bete. Things which are equal to the same thing are equal to one another. Now see, 2 and 1 are things, and they are equal to the same things. Yes, same things, 3. So things which are equal to the same things are equal to one another. Therefore 2 is equal to 1. One more example. Things A and C are things and they are equal to the same thing, that is B and B. Therefore A will be equal to C. I hope it is understood. The second axiom says that if equals are added to equals, then the wholes are equal. That is the whole part that is the answers are equal. Suppose equals 2 is equal to 2. When equals are added to equals, now I am adding equals to 2 and 2. That is, I am adding 1 over here and 1 only I'll have to add this side. Because equals are added to equals, the whole or the answers will be equal. So 2 plus 1, 3, 2 plus 1, 3. Therefore equals are added to equals, then the wholes are equal. Is it okay, bete? Similarly, if equals are subtracted from equals, then the remainders are equal. I have equals over here, 3 and 3. I am subtracting equals from them. What are the other equals? 1 and 1. So when equals are subtracted from equals, the remainders are equal. 3 minus 1, 2, 3 minus 1, 2. Is it okay? Now the fourth one. Things which coincide with one another are equal to one another. Coincide means बिल्कुल उसकी फोटोकॉपी. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है जैसे सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई, दे कोइंसाइड. अगर मैंने एक सर्कल बनाया 2 सेंटीमीटर का और दूसरा सर्कल बनाया 2 सेंटीमीटर का, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हुई? फोटोकॉपी हो गई, बिल्कुल सेम चीज हो गई. तो उसको बोलते हैं कोइंसाइड करना. तो थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. दिस वॉज द फोर्थ axiom. Now the fifth axiom. The fifth axiom says that the whole is always greater than the part. हमेशा बेटा जो बड़ा हिस्सा होता है वो बड़ा ही रहेगा और उसका जो फ्रैक्शन पार्ट होगा वो ऑब्वियसली उससे क्या होगा? छोटा होगा. जैसे ये सर्कल है, ये पूरा होल पार्ट है और इसका ये अगर ये वाला पार्ट पूछूं तो ये किसका क्या होगा? इसका पूरे का 1/4 पार्ट होगा. पूरा कितना है? 4 है इसमें, और 4 में से ये एक टुकड़ा कितना होगा? 1/4. तो द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पार्ट. इज इट ओके? जैसे अर्थ है, अर्थ पूरा है और हम उसमें से क्या है? जैसे अर्थ का अगर जोधपुर कहूं तो वो क्या है? एक पार्ट है. isn't it? So the whole is always greater than a part. फिर है उसके बाद सिक्स्थ एक्सिम,
थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो भी चीजें थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, तो वो आपस में एक दूसरे की क्या हो जाएगी, इक्वल। जैसे ये दोनों है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द डबल, थिंग्स विच आर, दीज आर द थिंग्स, दे आर इक्वल टू द डबल ऑफ द सेम थिंग। ये x और इसका डबल हो गया, एंड दीज आर द थिंग्स। सो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। आई बात समझ में? फिर से समझो, ये z और y क्या, थिंग्स है, थिंग्स विच आर इक्वल, थिंग्स विच आर सॉरी डबल, ये थिंग्स हो गए, दे आर डबल हो गए। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, डबल किसके हुए, x का डबल हुआ और यहां पे भी x का डबल हुआ, सेम थिंग हो गया। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, देयरफॉर z इज इक्वल टू y। इसको अच्छे से पढ़ के फिर समझना, ये आराम से समझ में आ जाएगा। अब इसका बिल्कुल उल्टा है, ये थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर अगेन इक्वल टू वन अनदर। यहां पे डबल था बेटे और यहां पे इसका क्या हो गया, हाफ हो गया। तो हाफ ऑफ x इज इक्वल टू a, हाफ ऑफ x इज इक्वल टू b, तो ऑटोमेटिकली a किसके इक्वल हो जाएगा, b के। इज इट ओके? तो ये 7 एग्जाम्स है बेटे, और ये सातों एग्जाम आपको बाय हार्ट होने चाहिए और समझ में आना चाहिए कि ये होते क्या है, और एग्जाम्पल से समझाना या समझ में आ जाना चाहिए। इज इट ओके? जिस किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ये तो 7 एग्जाम्स थे बेटे। अब 5 पॉस्टुलेट्स होते हैं, वो भी हम समझ लेते हैं कि ये 5 पॉस्टुलेट क्या है। पहला पॉस्टुलेट है बेटे कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वो कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम बना सकते हैं। तो हाँ, बना सकते हैं। ये देखो एक पॉइंट है, यहां से खींची लाइन और ये दूसरे पॉइंट तक मैंने बना दी, ठीक है। तो ये पॉस्टुलेट 1 है। पॉस्टुलेट 2 कहता है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। अब टर्मिनेटेड लाइन मतलब रुकी हुई है, जैसे ये यहां पे रुक गई और ये यहां पे रुक गई, ये टर्मिनेटेड लाइन है। अब मैंने इसको यहां पे भी बढ़ा दिया इनडेफिनेटली, और इस डायरेक्शन में भी मैं बढ़ा सकती हूं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। इज इट ओके? उसके बाद थर्ड पॉस्टुलेट कहता है बेटे अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड विथ एनी रेडियस। हाँ, एक सर्कल हम, जैसे मैंने 2 सेंटीमीटर का बना दिया और सेंटर ये ले लिया, यहां पे मैंने एक सेंटर यहां ले लिया और 3 सेंटीमीटर का बना दिया। तो अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। इज इट ओके? फोर्थ पॉस्टुलेट ये कहता है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब मैंने अगर ये राइट एंगल ऐसे बनाया या फिर ऐसे बनाया या ऐसे बनाया, सारे राइट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। क्यों होते हैं? क्योंकि वो सारे क्या है, 90 डिग्री है। इज इट ओके? तो ये 4 पॉस्टुलेट्स तो मैंने समझा दिया है। 5th पॉस्टुलेट जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। इज इट ओके बेटे? आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। अब ये एग्जाम्स और पॉस्टुलेट्स क्लास वर्क में लिखना है बेटे, और इन्हें याद भी करना है। इज इट ओके? एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क।